This is case number 5 for you, and look at this case and apply all your clinical knowledge here to understand this case. And only thing what you have to do is you have to go by basics. Okay, don't go away from the basics, and don't even, there is no need of thinking bigger things. Just always look into the basics, that is sufficient. And 1 minute, it's opening, I think. Is it visible? Yes. So this is, yes, case number 5. I hope a slide is visible now. 2-year-old presented with loose stools for last 2 weeks. Okay, so age of the child is 2 years. There is a loose stool and the duration is 2 weeks. Initially stool was watery and 7 to 8 times per day. शुरू में जो stool था, that is watery in nature and it about 7 to 8 times per day. But after 2 days, stool frequency comes down. After 2 days, stool frequency comes down after some treatment. कुछ treatment उसको दिया गया, stool का जो frequency है कम हो गया. But still he has got 3 to 4 loose stools. अभी भी जो है बच्चे को 7-8 बार नहीं हो रहा है, but 3 से 4 बार तो हो रहा है. ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं. ठीक है. Baby is not sick. बच्चा जो है sick नहीं दिख रहा है, and baby is quite healthy and also playful. And there is no other complaint. Now, what is this condition? So, 2-year-old presented with the loose stools for the last 2 weeks. Initially, stool was watery and 7 to 8 times per day. But after 2 days, stool frequency comes down after some treatment. And if you look into this case, there is no fever mentioned, isn't it? So, one interesting thing is there is no fever. And baby is also not sick looking, and also baby is healthy, and there is no other complaints. So what do you think about this case? Any idea? No. एक कॉन्सेप्ट है कि नाभि हिलना कुछ ऐसा बोलते हैं, तो वो शायद हो सकता है क्योंकि बच्चा सिक लुकिंग भी नहीं है, ना कोई फीवर है, ना कोई कंप्लेंट है. तो नाभि का कुछ that umbilical somewhere dislocated may be the cause. Okay. Any other? See, we have got loose stool. 2 साल का बच्चा है, loose stool है, सिर्फ 2 वीक से शुरू हुआ है. इसको 2 वीक से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था. ठीक है. और 7 to 8 टाइम्स पहले फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था, फ्रीक्वेंसी कम हो गया. कुछ ट्रीटमेंट उसको दिया गया है, माने इम्प्रूवमेंट मिला उसको, बट अभी भी 3 से 4 बार हो रहा है. Okay, now this is the case, we will discuss this. Before 2 weeks child was all right, isn't it? So ये 2 साल का बच्चा है, 2 वीक पहले बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना? So child is all right. So child started with this loose stools very suddenly, no doubt. Since last 2 weeks ago, child started with this particular loose stool. So suddenly ये जो शुरू हुआ है, whenever anything starts suddenly, किस में होता है suddenly? Suddenly fever किस में आता है? वायरल फीवर में. Suddenly कोई कफ वगैरह किस में आता है? एलर्जिक में. Okay, so now we have got 2 important aspects. Whenever anything started suddenly, okay, so there are, I already told, there are 6 important causes for sudden onset. It may be vascular, it may be mechanical, it may be allergic, it may be metabolic, it may be toxic, it may be drugs. Okay, so these are some of the important causes. Whenever any symptoms start suddenly, यही 6 में होना चाहिए, उससे अलग नहीं जाएगा. Okay, so now here child started with the loose stool suddenly, so it may be a case of maybe viral infection से हो सकता है, और एलर्जी से हो सकता है, या मेटाबॉलिक हो सकता है. बट यहाँ पे baby is not sick looking and baby is also healthy. Okay, this is one point. अभी भी कोई conclusion में हम नहीं आ सकते हैं, ठीक है. But it is not chronic. One thing is very clear. ये जो केस है ये chronic नहीं है, because it started 2 weeks ago and the child is also happy and weight gain and वो सब अच्छा है, healthy है. Okay, therefore it is not a chronic case and there is also no weight loss. So for me it looks like viral. देखेंगे आगे क्या होता है. It looks like a viral. हो सकता है कि viral upper respiratory tract infection वहाँ से शुरू हुआ, या कोई भी viral infection GIT का हुआ. Because see, when a viral infection takes place in the upper respiratory tract, definitely you will have the fever
एंड कफ, वो जो पैटर्न है वो मिलता है. बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट ए वायरल डायरिया ऑफ द GAT में ऑल्सो मैनिफेस्ट विद द फीवर. ये एक टिपिकल है. ठीक है, बहुत बार जो है हमें वायरल GAT इन्फेक्शन होता है, सो वहाँ पे फीवर नहीं आता है बट डायरिया विल बी देयर और समटाइम वोमिटिंग विल बी देयर. ओके, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बहुत बार हमें होता है. ओके, बट इफ अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई वायरल इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे जाके इंटेस्टाइन में चला गया, GAT में चला गया, तो पहले आपको फीवर का हिस्ट्री मिलेगा. मैंने पहले भी बताया था, पहले फीवर का हिस्ट्री मिलेगा. फीवर के साथ साथ जब जैसा इन्फेक्शन चला गया स्टमक एरिया में तो आपको वोमिटिंग आना शुरू हो जाएगा, और स्टमक से आगे जब इन्फेक्शन चला गया इंटेस्टाइन में, वोमिटिंग भी बंद हो जाएगा और डायरिया शुरू हो जाएगा. और जब तक ये डायरिया शुरू हो जाएगा फीवर तो कंप्लीटली बंद हो जाएगा. So both these possibilities are there. Okay, this you have to understand. Sometimes the GIT diarrheas, GIT viral diarrheas may manifest without fever, or sometimes very mild fever, or sometimes it follows a typical pattern. Start as upper respiratory infection, descending infection spreads, vomiting starts, और जैसा इन्फेक्शन जो है GIT के अंदर चला गया, इंटेस्टाइन पे चला गया, आपको फीवर भी खत्म हो गया, वोमिटिंग भी खत्म हो गया, डायरिया शुरू हो गया. So this possibility is also there, but here there is no past history of fever, तो ये descending infection नहीं है. Anyway, we will look into that. So at present it may be a viral also. Okay. If it is allergic suddenly onset है 2 week से continuously जा रहा है ना, अगर वो allergic है, allergic भी हो सकता है. Okay, because if it is allergic, there should be a particular history of intake of the particular food which is triggering this particular diarrhea. अगर एलर्जिक है, कोई भी फूड से एलर्जी है, सो कोई फूड हिस्ट्री होना चाहिए, एलर्जिक फूड हिस्ट्री होना चाहिए कि पर्टिकुलर फूड लेने से जो है इसको प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट आई टोल्ड ऑलरेडी. व्हाट इज दैट? वायरल यूजुअली हैव द लूज स्टूल. डायरिया हो सकता है, सडन ऑनसेट भी हो सकता है, एंड इट मे और मे नॉट बी विद द फीवर. ओके, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द क्लिनिकल पॉसिबिलिटी. हमें पता होना चाहिए कि जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फीवर इन्फेक्शन होता है हमेशा फीवर आता है. ठीक है, बट कभी कभी GIT में इट कैन मैनिफेस्ट विदाउट फीवर ऑल्सो. सो वायरल इन्फेक्शन कॉजेस सर्टेन डैमेज टू द म्यूकोसा ऑफ द गट एंड इट इज कंप्लीट रिकवरी नीड सम टाइम ऑल्दो देयर इज नो वायरस इनसाइड. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, हो सकता है कि एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन में इन्फेक्शन GIT में चला गया और वहाँ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन को उसने डैमेज कर लिया. ठीक है, जो सुपरफिशियल है, जो भी है, म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर लिया. अब वो डैमेज करने के बाद वो म्यूकोसा वापस बनने में कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि कल से आज तक जो है डायरिया ठीक हो जाएगा, बिकॉज कंप्लीटली डायरिया तभी ठीक होता है जब म्यूकस मेम्ब्रेन जो डैमेज हो वापस बन गया, रिफॉर्म हो गया, देन एक्चुअली डायरिया स्टॉप्स. सो वी नो दैट वायरल इन्फेक्शन कॉज अ सडन डैमेज, और किस तरीके से वो पूरा बारात लेके आता है आपको पता है ना, पूरा जो है एक साइड से डैमेज करता जाता है. सो डेफिनेटली वायरल इन्फेक्शन ऑफ द GIT कॉजेस मैसिव डैमेज ऑफ द म्यूकोसा, इतना पक्का है. सो अगर मैसिव डैमेज हुआ तो उसको बनने में भी बहुत टाइम लगेगा. ओके, तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ आगे देखेंगे. सो टिल द कंप्लीट रिकवरी एंड री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गट म्यूकोसा देयर में भी सम लूज टूल्स. अब इस केस में क्या हुआ कि पहले जो है उसको 7 से 8 बार जो हो रहा था, हम मानेंगे इसको वायरल डायरिया है, तो वायरल डायरिया जितना भी उसको डैमेज करना है कर लिया, और उसके बाद उसको कुछ ट्रीटमेंट दिया गया, या हमें पता है कि वायरस जो है सेल्फ लिमिटिंग है. ठीक है, तो वायरस तो चला गया, बट उसने जो डैमेज करके गया है ना, वो तो है डैमेज, वो डैमेज ठीक होने में अभी भी टाइम लगेगा, तो तब तक बच्चे को लूज टूल होता रहेगा. तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 वीक तक उसको बहुत ज़्यादा 7 to 8 टाइम्स गया जब वायरस अंदर था. अब वायरस अब हो गया सेल्फ लिमिटिंग में, वो ख़त्म हो गया, फिर भी जो है डायरिया चालू है क्योंकि उसने जो डैमेज किया उसको रिपेयर करने में टाइम लग रहा है, बट फ्रीक्वेंसी कम हो गया है ना. फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 to 4 में आ गया. इसका मतलब धीरे धीरे वो रिकवरी हो रहा है, डैमेज जो है सही हो रहा है, तो टाइम तो लग रहा है. ओके, सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से, इज फंक्शनल रिकवरी टेक्स प्लेस आफ्टर सम टाइम, थोड़ा टाइम चाहिए. ठीक है, सो लीड इन टू कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ द सिम्टम्स. सो व्हाट इज दिस एक्चुअली प्रॉब्लम? दिस प्रॉब्लम इज नथिंग बट दिस इज अ वायरल इन्फेक्शन इंड्यूस्ड ट्रांसिएंट माल एब्जॉर्प्शन. ना वायरस ने जो है बहुत डैमेज कर लिया इंटेस्टाइन एरिया में, तो इसकी वजह से जो है
वहाँ पे माल एब्जॉर्प्शन हुआ और इसकी वजह से जो है डायरिया आ गया. नो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू सी, स्टूल का क्वांटिटी कुछ पता है ना, प्रेजेंट विद द लूज स्टूल्स. लूज का स्पेलिंग गलत हुआ है. ओके, सो इट इज child is also presented with the loose stools. Now if you have got loose stools and initially stool was watery and 7 to 8 times per day, so do you think it is a small intestinal diarrhea, large intestinal diarrhea? Small intestine. Huh? Small intestine. Yeah, so this is a small intestinal diarrhea. Definitely जो डैमेज हुआ है वायरस से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है. एंड सो एक्चुअली दिस टाइप ऑफ केसेस आता है. ठीक है, वो कहीं और ट्रीटमेंट लेते हैं 3-4 दिन के लिए. ठीक है, तो उसका फीवर का डायरिया का फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाता है और फिर भी वो कंप्लीटली क्योर नहीं होता है. तो उसको लगता है कि ये डॉक्टर ठीक नहीं है, तो दूसरा डॉक्टर के पास आते हैं. तो आपके पास जब आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हिस्ट्री ठीक से बोलते भी नहीं है. आपके पास जब आएंगे, ठीक है, तो वो आधा हिस्ट्री बोलेंगे कि इसको ऐसे ही चल रहा है, 2 वीक से चल रहा है, पहले उसको और ज़्यादा चल रहा था, हमने उस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करने के बाद थोड़ा कम हो गया. ठीक है, तो फिर भी पूरा कम नहीं हुआ, इसलिए आपके पास है. इस टाइप से वो हिस्ट्री नहीं देंगे. ठीक है, उसको लगता है कि वो पहले वाला डॉक्टर ठीक से नहीं देगा, इसलिए वो चालू है तो आपके पास. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सो बाय लुकिंग एट द हैप्पी चाइल्ड और नॉन सिक चाइल्ड, तो ये आपको गैदर करना पड़ेगा. दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स ऑल्सो डू कम. ठीक है, तो यूजुअली दे विल कंसील देयर क्या है कि हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री. उसको ऐसा लगता है कि दूसरे डॉक्टर को भी हमने दिखाया, बोले इस डॉक्टर को बोला तो ये को इसको बुरा लगेगा, पता नहीं है ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करेगा या जो भी है ना. तो यूजुअली पेशेंट इसको हाइड करते हैं. सो दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी. ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द सेम. इसी केस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि 1 year old child is presented with the loose stools for the last okay, this is another case. So this case is over. Now look into this case, case number 6. Case number 6, 1 year old child presented with the recurrent loose stools for the last 6 months. See, duration बहुत ज़्यादा है. ठीक है, 6 month का duration है. बच्चा कितना, 1 साल का है, मतलब जब से बच्चा 6 महीने का है उसके बाद उसको प्रॉब्लम है. रिकरेंट लूज स्टूल्स है. ईच टाइम द एपिसोड स्टार्ट विद द फीवर. ओके, हर बार जब इसको डायरिया का एपिसोड शुरू होता है तो हमेशा वो लूज स्टूल फीवर के साथ शुरू हो जाता है. फीवर फॉलोड बाय लूज स्टूल्स. कब से चल रहा है, 6 महीने से चल रहा है. इट्स गेट बेटर विद सम एंटीबायोटिक्स बट देयर इज रिकरेंसेस. अब क्या है कि कुछ आप एंटीबायोटिक्स या जो भी मेडिसिन दे दो तो उसके बाद जो है वो थोड़ा वो ठीक हो जाता है. 10-15 दिन के लिए बच्चा सही रहता है, उसके बाद वापस उसको फीवर आता है, फीवर के साथ डायरिया शुरू हो जाता है. ओके, सो इन बिटवीन द एपिसोड चाइल्ड इज गुड एंड नॉट सिक. जो 15 दिन का बीच में जो गैप है जहाँ पे बच्चा ठीक रहता है, तो वहाँ पे जो है बच्चा हमेशा नॉर्मल रहता है, प्लेफुल रहता है. दिस चाइल्ड इज बॉटल फीड. इस बच्चा जो है बॉटल फीड चाइल्ड है. ओके, इतना बच्चे का हाइजीन का मेंटेन नहीं हो रहा है, दो आपने ऑब्जर्व किया है केस में. ठीक है, अनहाइजीनिक चाइल्ड लग रहा है आपको, पेरेंट्स जो है ठीक से उसका हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है. चाइल्ड इज ऑल्सो बॉटल फैट. इफ यू गो फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन, वेट ऑफ द चाइल्ड इज 7 kg, लेंथ ऑफ द चाइल्ड लेंथ इज 7 to 2 centimeter, and there is also gaseous abdominal distension. Yes, can you identify this case? ठीक है, 1 year चाइल्ड, 6 months से हिस्ट्री है, मतलब जब से बच्चे को 6 महीने हो गए तब से हिस्ट्री है. क्या हिस्ट्री है? देयर इज ए फीवर फॉलोड बाय लूज स्टूल्स एवरी टाइम. ठीक है, तो थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक है, जो भी मेडिसिन दे दिया वो ठीक हो जाता. 15 दिन तक बच्चा ठीक है, प्लेफुल है, नॉन सिक है, उसके बाद वापस डायरिया शुरू हो जाता विद फीवर. सो दिस इज हैपनिंग. चाइल्ड इज बॉटल फीड एंड ऑल्सो अनहाइजीनिक चाइल्ड केयर इज ऑब्जर्व. फिजिकल एग्जामिनेशन, वेट 7 kg. डू यू थिंक 1 year के लिए सही है 7 kg? कम है. नहीं सर, 10 किलो नीचे. ओके, लेंथ इज 7 to 2 centimeter. 1 year के लिए ये भी थोड़ा कम, लगभग, बट ऑलमोस्ट ऑल सही है लेंथ. लगभग सही. ठीक है, बट थोड़ा बहुत कम है. नो, लेंथ इज नॉट मच अफेक्टेड बट वेट इज डेफिनेटली अफेक्टेड. वेट अफेक्ट हुआ है. सो when weight is affected more than the length, most commonly it is a
एक्यूट कंडीशन, कुछ कोई ना कोई एक्यूट कंडीशन है, ठीक है, बट फिर भी वेट जो है इतना ज़्यादा भी नहीं अफेक्टेड है, ठीक है, बिकॉज एक साल में हम कितना होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए. वी नो दैट, वी डोंट नो दैट व्हाट इज द बर्थ वेट ऑफ द चाइल्ड. अदरवाइज कितना एक साल में कितना वेट बढ़ना चाहिए, कितना केजी बढ़ना चाहिए? 9 kg. नहीं 6 + 2 8 kgs है ना. 8 सही है. 6 + 2 है. एक साल में कितना वेट बढ़ता है? अगर मान लो बर्थ वेट 2 kg है तो एक साल में उस बच्चे का वेट कितना होना चाहिए? 6 बढ़ता है ना. 2 + 4 होता है. 6 kg बढ़ना चाहिए. अगर इस बच्चे का वेट आप ले लो कि 2 kg था तो अभी होना चाहिए था 8 kg उसको एक्चुअली, बट ये 7 kg है. तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि वेट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और हाइट भी जो है बहुत ज़्यादा कम ऐसा नहीं है, बट बच्चे को प्रॉब्लम है लास्ट 6 मंथ से, ठीक है. सो वेट थोड़ा ज़्यादा कम है तो आप ले सकते हैं, कोई ना कोई एक्यूट कॉज है. सो देयरफॉर अगेन दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रोथ चार्ट. सो यहाँ पे क्लियर है कि वेट और हाइट दोनों कम है, बट जिस तरीके से जो सीवियरिटी है उस सीवियरिटी के हिसाब से इतना ज़्यादा कम नहीं है ना. 6 महीने से उसको ठीक से बार बार हो रहा है रिकरेंट. सो वेरी सिंपल है, बच्चे को रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है या फीवर आ रहा है, जो भी है इन्फेक्शन हो रहा है, बट स्टिल ग्रोथ चार्ट इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है. सो व्हाट इट सजेस्ट? क्रॉनिक नहीं है. हाँ, क्रॉनिक तो 100% नहीं है, ठीक है. क्रॉनिक नहीं सर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है. क्रॉनिक नहीं है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं है, ये दिस इज ए सिंपल वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है. आपको पता है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन है ना सर, वो देखेंगे, वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन का कॉज क्या है वो देखेंगे, बट जिस तरीके से बच्चे का हाइट और वेट के साथ स्टार्ट हो रहा है सर बार बार, हाँ वो देखेंगे, वो उसका कॉज क्या है वो आगे देखेंगे. परसिस्ट भी कर रहा है ना सर, वो स्लो डाउन हो जाता है बैक्टीरिया, वो पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हूँ मैं भी, वो देखेंगे क्या है. अभी देखो कि वेट और हाइट को आप देखेंगे इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है, ठीक है. अगर बैक्टीरियल होता तो डेफिनेटली वेट और हाइट मतलब वो प्रॉब्लम होता, ठीक है. हमें पता है कि रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस विल बी देयर बिकॉज इम्यून रिलेटेड इश्यू बच्चों में रहता ही है, बट जब तक ये रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या जो भी है या रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस आर नॉट डेंजरस until and unless the growth chart is normal, ठीक है. अब सभी मदर आके लेके आती है कि 15 दिन में इसको हर बार फीवर आता है, क्या करेंगे, ठीक है. मैंने पहले भी बताया था आपको क्या देखना है, ग्रोथ चार्ट देखना है. अब ग्रोथ चार्ट नॉर्मल दिखा रहा है तो आने दो फीवर को, ठीक है. वो इम्यूनिटी इशू है, टी सेल इम्यूनिटी रिलेटेड इशू बच्चों में रहता है और फंक्शनल इमेच्योरिटी वगैरह रहता है, तो इसकी वजह से आएगा. बट इफ द ग्रोथ चार्ट इज नॉर्मल, नो नीड टू वरी. सो इस बच्चे में नॉर्मल नहीं बोल सकते, बट ऑलमोस्ट ऑल नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है. फिर भी हम देखेंगे, वी कीप द ऑप्शंस ओपन. नाउ बॉटल फीड चाइल्ड, अनहाइजीनिक चाइल्ड, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, गैसियस, सो दिस इज ऑल्सो देयर. सो नाउ यू कैन डिसाइड. अनदर इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे पता है कि इन बिटवीन द एपिसोड द चाइल्ड इज गुड एंड सिक. नाउ एक बात मैं बताता हूँ आपको, वायरल इन्फेक्शन, अगर कोई भी वायरल फीवर हो गया तो आपको पता है कि इंटरफेब्रल पीरियड कैसे रहता है. इंटरफेब्रल पीरियड विल बी नॉर्मल, है ना, प्लेफुल रहता है ना. बैक्टीरियल फीवर और वायरल फीवर के बीच में डिफरेंस यही है कि बैक्टीरियल में इंटरफेब्रल पीरियड में भी जो है बच्चा डल रहता है, बट वायरल में जो है इंटरफेब्रल पीरियड में बच्चा बहुत एक्टिव रहता है, वापस फीवर आने के बाद डल हो जाता है, ठीक है. सेम रूल्स ऑल्सो अप्लाई फॉर इंटर एपिसोडिक फीवर. इंटर एपिसोडिक मतलब क्या है कि बच्चे को 10 दिन तक फीवर आ गया या डायरिया आ गया, जो भी वायरल कॉज की वजह से, ठीक है. जब वो फीवर वगैरह था तो बच्चा थोड़ा डल था और उसके बाद 15 दिन के लिए उसको कुछ भी नहीं था. जब 15 दिन के लिए कुछ भी नहीं था वहाँ पे बच्चा नॉर्मल था, तो वापस जब उसको वायरल डायरिया हुआ तो वापस वो डल हो गया. ये क्या हो गया, इंटर एपिसोडिक हो गया. जब इंटर एपिसोडिक टाइम में अगर बच्चा नॉर्मल है, प्लेफुल है, दिस ऑल्सो सजेस्ट दैट इट इज वायरल. समझ में आ रहा है आपको? यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? यस सर. यस सर. जिस तरीके से एक फीवर में जो है इंटर
दो फीवर का जो पीक का बीच में जब इंटरफेब्रल पीरियड आता है तो वहां पे हम बोलते हैं कि अगर ये पीरियड नॉर्मल है तो यूजुअली ये वायरल है। सिमिलरली इंटर एपिसोडिक ऑल्सो, है ना, 15 दिन तक उसको प्रॉब्लम है, 15 दिन वो नॉर्मल है, वापस 15 दिन में वापस उसको हो गया, उसके बाद 15 दिन नॉर्मल है, ठीक है। तो देखो एक बैक्टीरिया बॉडी के अंदर घुस गया तो ऐसा नहीं हो सकता, बैक्टीरिया बीच में रेस्ट नहीं लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू टेक ट्यूबरकुलोसिस अंदर आने के बाद ऐसा नहीं होता है कि 15 दिन के लिए बच्चा नॉर्मल है, 15 दिन के लिए बच्चा प्रॉब्लमेटिक है और 15 दिन के बाद वापस बच्चा डल हो गया, वापस वो सही हो गया। नो, बैक्टीरियल में क्या है कि कंटिन्यूसली उसका डिटोरिएशन धीरे धीरे होता रहता है। सो कभी भी जो है बच्चा हैप्पी और एक्टिव नहीं रहेगा, बट बीच में बच्चा इस तरीके से एक्टिव रह रहा है। ओके, दैट सजेस्ट दैट दिस इज नॉट बैक्टीरियल, दिस इज वायरल। ये प्रॉब्लम हमें आता है यूजुअली व्हेन यू सी द बेबीज। देखो कि बच्चे को बार बार फीवर आ रहा है और कफ भी है, ठीक है। मदर आती है आपके पास और मदर का मेन कंसर्न होता है कहीं ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है ना। तो खांसी भी चल रहा है, उसका फीवर भी चल रहा है, बार बार फीवर आ रहा है, मदर को तो कंसर्न रहेगा और इवन हमें भी डाउट आता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो गया। बट ईजी है आपको देखना, एक तो ग्रोथ चार्ट है आपके पास, उसके थ्रू आप जाओ, और दूसरा जो है क्या ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया इतना खतरनाक बैक्टीरिया वो बीच में रेस्ट लेगा? नहीं, ट्यूबरकुलोसिस में बच्चे का जनरल कंडीशन धीरे धीरे गिरता ही जाएगा। दिस इज सेम फॉर ऑल द बैक्टीरिया, नॉट ओनली फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया इज वन ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, सो ये छोटा छोटा चीज़ है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। यहाँ पे आपको सिर्फ आपका क्या है कि कॉमन सेंस लगाना है, डायग्नोसिस नॉट सो डिफिकल्ट, ठीक है। सो यू सिंपली रिमेंबर, जब इंटर एपिसोडिक पीरियड नॉर्मल है तो बैक्टीरिया में ये हो ही नहीं सकता है। कोई क्रॉनिक डिसीज है इसमें हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज इंटर एपिसोडिक पीरियड इज ऑल्सो नॉर्मल। सो पूरा का पूरा जो है ये अभी सजेस्ट कर रहा है कि वायरल है। बट क्वेश्चन है कि चाइल्ड इज बॉटल फिट एंड अनहाइजीनिक चाइल्ड कैरीज ऑल्सो नोटिस्ड, ठीक है, कि गेशियस एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी है। नाउ लुक एट दिस, व्हाट मे बी द पॉसिबिलिटीज। ओके, ऑलमोस्ट ऑल सेम चीज यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। व्हाट इज दैट? प्रॉब्लम इज देयर सिंस लास्ट 6 मंथ, सो इट्स नॉट ए क्रॉनिक प्रॉब्लम इज देयर सिंस लास्ट 6 मंथ इस कंडीशन में, बट इंटर एपिसोडिक पीरियड इज नॉर्मल, बट प्रॉब्लम इज देयर सिंस लास्ट 6 मंथ। ओके, सो वी विल कॉल इट एज ए क्रॉनिक प्रॉब्लम, बट इफ यू सी द ग्रोथ चार्ट इट इज नॉट मच अफेक्टेड। ओके, तो हो सकता है कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि 6 महीने से चल रहा है तो, बट इसको क्रॉनिक मानना इतना आसान नहीं है क्योंकि इंटर एपिसोडिक पीरियड नॉर्मल है। अगर क्रॉनिक होता तो इंटर एपिसोडिक पीरियड नॉर्मल नहीं होता। फिर भी इफ द क्रॉनिक प्रॉब्लम हाइट एंड वेट बोथ आर डिक्रीज्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट एंड वेट इज डिक्रीज्ड, सो इसलिए हम थोड़ा बहुत इसको क्रॉनिक मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ बट थोड़ा बहुत तो डिक्रीज हुआ है। ओके, नाउ इन बिटवीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इन बिटवीन द एपिसोड द चाइल्ड इज फाइन। इन बिटवीन वो फाइन है, इसका मतलब क्या है? कोई प्रोग्रेसिव डिसीज नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस होता तो प्रोग्रेसिव डिसीज है, बाकी कोई भी बैक्टीरियल डिसीज प्रोग्रेसिव है, ठीक है। ये ऑनगोइंग प्रोग्रेसिव डिसीज नहीं है, इसलिए बीच में वो सही हो गया, बट इट इज ऑकरिंग रिकरेंट। अब क्या है कि वो ज़्यादा क्रॉनिक भी नहीं है और वो जो है प्रोग्रेसिव डिसीज भी नहीं है, ठीक है, ऐसा बोले तो एक्यूट भी नहीं है, और इंटर एपिसोड पीरियड भी नॉर्मल है, बट जो प्रॉब्लम हो रहा है वो बार बार आ रहा है। ओके, ये जो प्रॉब्लम है वो बार बार आ रहा है, यही मेन इश्यू है, रिकरेंटली उसको आ रहा है, अदरवाइज सब कुछ सही है उसका। सो इफ इट इज बैक्टीरियल, इन बिटवीन पीरियड शुड बी एबनॉर्मल एंड सिक, हो गया डिस्कशन, विच इज नॉट सीन इन दिस केस। सो इट मे बी ए रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन। तो हम यही बोल सकते हैं वायरल इन्फेक्शन तो पक्का है, बट क्या है, बार बार आ रहा है 6 महीने से, इसलिए ये रिकरेंट है। अब क्या होगा? When we see the height and weight, again, he is malnourished, है ना, वो एक 7 kg है और 72 सेंटीमीटर है, पक्का malnourishment है, बट malnourishment is going very slowly, है ना। आपको भी लगता है कि malnourishment 6 महीने से उसको प्रॉब्लम चल रहा है रिकरेंटली, तो उस हिसाब से इसका जो malnourishment जो चल रहा था वो स्लोली चल रहा है ना। malnourishment है इसलिए तो लूज टूल्स है उसको, बट बहुत स्लोली चल रहा है। His height is started falling early than the height. His weight, sorry.
इस वेट इज स्टार्टेड फॉलिंग अर्ली देन द हाइट। 1 ईयर में जो है अगर मान के चलो उसका बर्थ वेट जो है 3 kg है, चलो तो इट शुड बी अराउंड 9 to 10 kg, ओके है ना। अब ऐड 6 करेंगे तो 6 kg ऐड करेंगे तो अगर 2.5 to 3 kg का नॉर्मल बच्चा है तो उसको 6 ऐड कर दो, सो इट विल बी अराउंड 9 to 10 kg। बट हाइट वाइज अराउंड 1 year इट शुड बी 75 सेंटीमीटर, बट इट इज ओनली 73 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कम है। सो ये तो क्लियर है कि दिस इज नॉट ए प्रोग्रेसिव इलनेस, और पूरा देखने के बाद इट इज ऑल्सो क्लियर दिस इज ए वायरल इलनेस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट देयर इज ए रिकरेंट वायरल इलनेस। ये रिकरेंट वायरल इलनेस इसको क्यों हो रहा है ये भी हमें देखना चाहिए। अगर रिकरेंट वायरल इलनेस है और ग्रोथ चार्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन है और ग्रोथ चार्ट भी थोड़ा बहुत अफेक्टेड है, जैसे इस केस में हुआ है, तो थोड़ा बहुत आपको कंसर्न दिखाना पड़ेगा कि चलो वायरल इलनेस है, ज़्यादा ग्रोथ चार्ट अफेक्टेड नहीं हुआ, थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है, बट ये रिकरेंसी क्यों आ रहा है ये तो देखना पड़ेगा। ओके, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सेम केस, दैट इज चाइल्ड में भी गेटिंग द रिकरेंट इलनेस ड्यू टू इम्यून डेफिशिएंसी। अब एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे को रिकरेंटली इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। हो सकता है कि उसका इम्यूनिटी बहुत कम है, इम्यून डेफिशिएंसी। इन द इम्यून डेफिशिएंसी देयर विल बी रिकरेंस एंड पैटर्न इज ऑलवेज अनयूजुअल। ठीक है, अब हर बार बच्चों को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, खांसी सब आ रहा है, ठीक है, तो सबको डाउट आएगा, हो सकता है कि ये इम्यूनो डेफिशिएंसी है ना, इम्यूनो डेफिशिएंसी है। कॉमन बहुत है, टी सेल इम्यूनो डेफिशिएंसी, बी सेल इम्यूनो डेफिशिएंसी, कंबाइंड इम्यूनो सेल डेफिशिएंसी, बेबी बॉर्न टू द HIV मदर, HIV, तो ये सब कॉमन कॉज है। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो, जो दूसरा वाला जो वायरल इन्फेक्शन है जो रूटीनली आता है वो एक सेट पैटर्न में आता है। अगर मदर ये बोलती है ना कि हर बार इसको सर्दी खांसी फीवर होता है, सर्दी खांसी फीवर होता है, सो दिस इज अ सेट पैटर्न है, सेट पैटर्न है। इसको जो वायरल इन्फेक्शन ही हो रहा है बट ये सेट पैटर्न में हो रहा है। बट अगर इम्यून डिफिशियंसी की वजह से उसको वायरल इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, वो एक सेट पैटर्न में नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कभी कभी उसको वायरल डायरिया होगा, कभी कभी जो है उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल इन्फेक्शन होगा, कभी कभी उसको वायरल वोमिटिंग हो सकता है, ठीक है, कभी कभी स्किन इन्फेक्शन हो सकता है वायरल। तो इस तरीके से अलग अलग सेट में आ जाएगा इम्यून डेफिशिएंसी। इम्यून डेफिशिएंसी एक ही जगह में थोड़ी होता है, इम्यून डेफिशिएंसी से हैपनिंग ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, तो हर जगह में इसका प्रॉब्लम आएगा। सो अनयूजुअल ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स, unusual presentation, unusual progress, so this is very typical of immune deficiency. Okay, so ये immune deficiency की वजह से जब होगा तो वो मेडिसिन को भी रेस्पॉन्ड करेगा थोड़ा दिन के लिए और उसके बाद वापस होगा। जब दूसरा बार होगा ना तो उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग होगा। ओके, सो इम्यून डिफिशियंसी नॉट ओनली इन्वॉल्व द इंटेस्टाइन, जैसा मैंने बताया, इट मे ऑल्सो अफेक्ट द अदर सिस्टम। उसको इम्यून स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्काल्प इन्फेक्शन भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, सर्दी खांसी भी हो सकता है। ओके, सो एवरी टाइम इन्फेक्शन विल अकर एंड क्यूर, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन द इन्फेक्शन अकर इट इज मोर वर्सन एंड लाइक दिस मल्टीपल सिस्टम्स आर गेट अफेक्टेड। ओके, ये जो है आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये रूटीन वायरल इन्फेक्शन के साथ रूटीन वायरल रिकरेंट इन्फेक्शन को इम्यूनोडिफिशियंसी की वजह से होने वाला वायरल इन्फेक्शन से। सिंपल है, ठीक है, गो टू द बेसिक्स, है ना। इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी होगा तो ऐसे थोड़ी कि एक पार्ट के लिए होगा, वो तो पूरा शरीर के लिए होगा। तो इसलिए वायरस कहीं पे भी जाके अटैक कर सकता है। सो जब वायरल कहीं से भी जाके अटैक कर सकता है तो मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होगा। एक बार GIT होगा, एक बार रीनल होगा, एक बार स्किन होगा, है ना, एक बार रेस्पिरेटरी होगा। सो दिस इज पॉसिबल। सो ये अगर इस टाइप का प्रेजेंटेशन के साथ कोई आ रहा है वायरल इन्फेक्शन का, रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन विद द मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, देन मोस्टली इट इज रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल कॉज, immunodeficiency. Now if you look into this particular case, okay, there is another important thing. What is that? Bottle feeding.
अब इस केस में आएंगे तो यहाँ पे बॉटल फीडिंग भी है। इतना सारा हमने डिस्कशन कर दिया। पहले हमने पहले स्लाइड में देखा कि ये वायरल इन्फेक्शन हमने प्रूव कर दिया। सेकंड में हमने बता दिया कि ये रूटीन वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये हो सकता है कि इम्यूनोलॉजिकल कॉज की वजह से है, क्योंकि उसका वेट भी कम हो रहा है, माल एब्जॉर्प्शन भी है और डायरिया भी हो रहा है, ठीक है, और बार बार आ रहा है, ठीक है, रिकरेंट भी आ रहा है। अब हमें देखना है कि ये बॉटल फीडिंग और अनहाइजीनिक चाइल्ड और ये गैसियस डिस्टेंशन, इसका क्या करें। Now, but there is also the history of bottle feeding and unhygienic child care. So something which is coming from the outside is causing this problem. Okay, हो सकता है वो वायरस है, ठीक है। So like hygiene and bottle feeding, etc. Okay. Now, there comes another important concept. वो क्या है? When host is abnormal, then the problem is inside. When the host is normal, the cause is from outside. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? होस्ट एबनॉर्मल है। होस्ट मतलब जो भी बच्चा है, पेशेंट है, होस्ट जब उसमें ही प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसका मतलब है उसका प्रॉब्लम बॉडी का अंदर से है, ठीक है। दूसरा, होस्ट नॉर्मल है, जैसे इस केस में होस्ट इज नॉर्मल, सो हमेशा हमें सोचना चाहिए कि हमेशा कुछ बाहर से कुछ बार बार आ रहा है और इसको परेशान कर रहा है। जब होस्ट नॉर्मल है तो इसका मतलब है बाहर से कोई चीज़ आ रहा है और इसको बार बार परेशान कर रहा है। अगर वो नहीं आया तो ये सही रहेगा। जब होस्ट खुद एबनॉर्मल है तो बाहर से कुछ आने का जरूरत नहीं है, वो खुद एबनॉर्मल रहेगा। व्हाट आई मीन टू से इज, if you go for stool examination in this patient, only if parasitic infections are suspected, then we can go for it. Chalo. Here the child gives a history of bottle feed. Okay, so child is happy in between the episodes. हमने डिस्कशन किया। So happy का मतलब है बच्चा तो नॉर्मल है, उसका अंदर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बाहर से आ रहा है। Okay, so outside viral infection is occurring recurrently and mostly there is no any background disease. क्योंकि कोई ना कोई अगर बॉडी का बैकग्राउंड कोई कॉज है, डिसीज है, तो वो क्रॉनिक भी होना चाहिए था और बच्चा खुश नहीं रहेगा। यहाँ पे बच्चा खुश है इन बिटवीन एपिसोड बच्चा खुश है। और दूसरा, अगर वायरल इन्फेक्शन से रिकरेंटली होता है तो क्या है कि उसका माने इम्यूनो डिफिशियंसी की वजह से नहीं है, सिंपल वायरल इन्फेक्शन है तो प्रेजेंटेशन हमेशा होगा सेट पैटर्न में होगा। इम्यूनो डिफिशियंसी की वजह से अगर होता है तो प्रेजेंटेशन जो है सेट पैटर्न में नहीं होगा, अलग अलग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? इस केस में क्या लग रहा है? अब बताओ, इतना सारा डिस्कशन कर दिया हमने, इस केस में क्या लग रहा है आपको? पहले तो ये बताओ कि ये वायरल इन्फेक्शन है, आप मानेंगे? यस सर, वायरल ही लग रहा है। हाँ, रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन आप मानेंगे। अब ये बताओ कि इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला वायरल इन्फेक्शन है या ये कि नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है? इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से एक ही टाइप का हो रहा है सर, बार बार नहीं। इस केस में कभी भी इसको, जब भी इसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है? फीवर के साथ इसको डायरिया हो रहा है। एक बार फीवर आ रहा है और उसके बाद उसको डायरिया हो रहा है ना, हमने केस में देखा। yes, तो ये एक सेट पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि हर बार जो है अलग अलग सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसा है क्या इसमें? ऐसा नहीं है। एक बार उसका स्किन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक बार वोमिटिंग आ रहा है उसको, और एक बार जो है रीनल प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार स्कल प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो इस सेट पैटर्न में हर बार। देखो फर्स्ट लाइन ऑफ केस में क्लियरली बताया। सी फर्स्ट लाइन ऑफ द केस क्या है? ईच टाइम द एपिसोड स्टार्ट विद द फीवर फॉलोड बाय लूज टूल्स। इतना बार जब भी हो रहा है उसको, फीवर स्टार्टेड बाय लूज टूल्स, सेट पैटर्न है। So definitely this is not even a recurrent viral infections because of immunodeficiency cause नहीं है। So what may be the cause? दूसरा, यहाँ पे होस्ट नॉर्मल है, होस्ट एबनॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब है कॉज भी अंदर से नहीं है, कॉज भी बाहर से।
और हमें मिल रहा है कि आपका बॉटल फीडिंग का हिस्ट्री और अनहाइजीनिक का हिस्ट्री. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? इट इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट certain opportunistic viral infection due to bottle feeding. Okay, this is certain opportunistic infection due to bottle feeding. See, ये समझ में आ गया? Yes, sir. देखो, जैसा मैंने हिस्ट्री दे दिया बॉटल फीडिंग Yes, का, sir. जैसा मैंने हिस्ट्री दे दिया बॉटल फीडिंग का, एज ए कॉमन सेंस आप तो उसी टाइम पे डिसाइड किए होगे ना कि ये बॉटल फीडिंग की वजह से ही हो रहा है ना. बट इसका जो अप्रोच है कि कंफर्म करना है कि ये बॉटल फीडिंग से ही है, दूसरा कोई कॉज नहीं है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. नहीं तो हमारा डायग्नोसिस क्या है कि वो हम इमेजिनरी डायग्नोसिस कर रहे हैं ना. हाँ, ये कॉज मिल गया बॉटल फीडिंग, हो सकता है बॉटल फीडिंग से ही है, आपका डायग्नोसिस सही है, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज एक्सक्लूडिंग द अदर फैक्टर्स. गलती नहीं होना चाहिए. जैसा क्या है कि कोर्ट में बोलते हैं कि क्या है कि किसी के आदमी को जो है गलत सजा नहीं मिलना चाहिए, भले ही न्याय मिलने पे देर हो गए हो, किसी भी सही आदमी को सजा नहीं मिलना चाहिए. इसलिए इतना सब इंक्वायरी चलता है कोर्ट में. इसी तरीके से यहाँ पे भी है, आपको पता है कि वो बॉटल फीडिंग है, बट फिर भी कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा कोई कॉज की वजह से भी हो रहा है. सो टू हैव दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो अप्रोच है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. केस डिस्कशन का मेरा उद्देश्य यही है कि टू हाउ टू गो विद अप्रोच. ओके, सो क्लियर है ये केस? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वी विल गो फॉर द केस नंबर 7. आई थिंक अब थक गए होंगे अभी, है ना. सो वी विल डिस्कस और वी विल कंटिन्यू इन द